pancake, stir a pancake, pour it in the pan, fry the pancake, toss the pancake, catch it if you can. Students, your mother cooks many food items for you. Do you know how she prepare all these things? We will see this in our today's lesson. What is cooking? NCERT class 3rd EVS. Cooking is done in every household, whether one is rich or poor. We see different kinds of utensils to cook our food. Some common utensils used by us are pressure cooker, kadhai, frying pan, saucepan, etc. Utensils used in cooking are made of different materials like stainless steel, brass, copper, aluminium, etc. We use different methods to cook different kinds of food like boiling, roasting. Here are the pictures for these methods. Frying, baking, steaming. Fuels used for cooking: wood, cow dung cakes. These are used as fuel in villages mostly. LPG gas, electricity, coal. We eat both cooked and uncooked food. Uncooked food like salad, fruit chaat. Cooked food are like rice, roti, idli, dosa. Today's our lesson is what is cooking. Look at the picture. Color the spaces which have dots in them. What do you see? Write down the names of the utensils you are seeing in this given picture. Like you can write down pots, spoon, frying pans, kadhai, or you can write wok also, saucepan, etc. Like this: WOK wok, POT pot, TAWA tawa, FRYINGPAN frying pan, pressure cooker, ladle, spatula, frying spatula. Now, in the picture you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? आपने पिक्चर में कुछ यूटेंसिल्स जो देखे वो कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, पर आपको और भी कुछ यूटेंसिल्स मालूम है जो कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, आपके घर में अगर यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट लिखनी है. लाइक सॉस पैन, टोंग्स, टोंग्स मतलब चिमटा जिससे आपकी मम्मी रोटी या फिर पापड़ जो है रोस्ट करती हैं, सेंकती हैं. What are utensils made of? यूटेंसिल्स किसके बने हुए होते हैं? स्टील. कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? स्टील, आयरन, कॉपर, ग्लास, ब्रॉन्ज, अर्थ. Ask some elderly people what kind of utensils were used earlier. What were they made of? जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिए कि उनके टाइम पे कौन से बर्तन यूज किए जाते थे और वो किससे बने हुए होते थे. तो ये आप आंसर अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछ के आप लिख सकते हो आंसर कि उनके टाइम पे किस टाइप के यूटेंसिल्स यूज किए जाते थे. Answer is, in earlier times utensils were bigger in size than they are today. There were beautiful carvings on them. They were made of ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कॉपर. पहले के ज़माने में जो यूटेंसिल्स होते थे वो बहुत ही बड़े साइज़ में होते थे और उन पे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनी हुई होती थी और ज़्यादातर ब्रॉन्ज, ब्रास और कॉपर ये मटेरियल यूज़ किया जाता था उन यूटेंसिल्स को बनाने के लिए. We do not cook all the things that we eat. Find out which things we eat raw and which ones we cook before eating.
Which are the things we eat both cooked and raw? Fill in the table given below. Here are 3 columns. Things that are eaten raw, things that are eaten cooked, things that are eaten both raw and cooked. तो आपको लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज़ें आप रॉ खाते हो और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप पकाकर खाते हो, कुक करके खाते हो, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों रॉ और कुक करके खाते हो। तो रॉ थिंग्स में आएगा टोमेटो, कैरेट, रेडिश, कैबेज। These are the things that we eaten raw. Things that are eaten cook are dal, rice, chapati, potato. Things that are eaten both raw and cooked. Think about it. Carrot, tomato, cabbage, ब्लैक ग्राम। ये चीज़ें हम रॉ भी खाते हैं और कुक करके भी खाते हैं। हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनी अदर anywhere else? There are so many things to be done for this. Taking out flour in a utensil, kneading it into a dough, making small balls of the dough, rolling out the balls and then cooking it on fire. After all this, the chapati reaches your plate after so much of effort. Go to the kitchen and observe something being cooked. What all was done to cook it? Write the sequence. Don't forget to write the name of the item being cooked. Look at the notebook of your classmates and discuss in a group. तो आपको आपके घर में किसी एक बनने वाले किसी एक फूड आइटम का नाम लिखना है नेम ऑफ द आइटम की जगह पे, और उसको बनाने के लिए कौन से स्टेप्स है ये आपको स्टेप वाइज यहाँ पे लिखना है कि किस तरह से। जैसे यहाँ पे रोटी बनाने के लिए स्टेप्स दिए हुए हैं कि सबसे पहले हम आटा निकालते हैं, फिर उसको गूंथते हैं, फिर उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के फिर उसको हम रोल करते हैं उन बॉल्स को, और रोटी की शेप देते हैं सर्कुलर, और फिर उसको हम कुक करते हैं फायर पे। तो इसी तरह से आपको किसी और आइटम के बारे में लिखना है, फूड आइटम के बारे में। जैसे आप लिख सकते हो छोलों के बारे में, या आप लिख सकते हो पराठा कैसे बनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ये आपको अपने आप खुद करना है, और अपनी मम्मी से पूछ के भी आप कर सकते हो। You have seen that food items are cooked in a variety of ways. Some are baked, some are fried, some are roasted, while some are steamed. Given below are different methods of cooking. Write the names of 2 things cooked by each of these methods. Add some more methods of cooking to the list and give examples too. आपको पता ही है कि बहुत सारी मेथड्स है वहाँ पे कुकिंग करने के लिए, जैसे कि रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग। तो आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको हम रोस्ट करके बनाते हैं, और फिर बॉईल करके भी बनाते हैं, और फ्राई करके जिन चीज़ों को हम बनाते हैं, और बेकिंग करके हम जिन चीज़ों को बनाते हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे हमने इससे पहले देखा कि रोस्टिंग किसे कहते हैं, बॉइलिंग किसे कहते हैं, फ्राइंग किसे कहते हैं, और बेकिंग किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ कि रोस्टिंग क्या होती है। तो देखिए रोस्टिंग क्या होती है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो यहाँ पे चिकन को रोस्ट किया जा रहा है। फिर आपको दिखाई दे रहा है बॉइलिंग, जहाँ पे बीन्स को बॉईल किया जा रहा है। फ्राइंग, यहाँ पे आलू से पोटैटो की जो फिंगर चिप्स है उनको बनाया जा रहा है, फ्राई किया जा रहा है। बेकिंग, यहाँ पे कुछ कुकीज जो है उनको बेक किया जा रहा है। तो इसी तरह से इन चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं कि कौन सी चीज़ें इन मेथड्स को यूज़ करके बनाई जाती हैं, जैसे रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग एट्सेट्रा। What is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name. आपको आपके हाउस में इनमें से कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए, उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है अपनी कॉपी में EVS की, और उसका नेम आपको लिखना है। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स. What produces heat in each of them? Match the pictures with the list. मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग also. तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है और कुछ पिक्चर्स दी हुई है फ्यूल की, उससे आपको मैच करना है जैसे लिस्ट में दिया हुआ है
केरोसिन ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वुड, सनलाइट, काऊ डंग केक्स। तो आपको इनसे मैच करना है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है फ्यूल की और लिस्ट भी दी हुई है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, गैस स्टोव है, यहाँ पे केरोसिन पे चलने वाला स्टोव भी है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली शेगड़ी है, कोल पे और काउडंग के केक्स पे चलने वाला चूल्हा है। Now make and eat. Soak whole mung seeds overnight in water. In the morning, wrap the soaked mung in a wet cloth and cover it. Take it out after a day. Do you find any difference? Add sliced onions, tomatoes, salt and lemon juice to the mung and mix. Share it with your classmates. तो आपको ये मूंग सीड्स को क्या करना है, जो साबुत मूंग सीड्स होते, होल मूंग सीड्स जो होते, उनको ओवरनाइट भिगा के रखना है और मॉर्निंग में उसको एक गीले कपड़े में रैप करके रखना है और कवर करना है। और 1 डे के बाद उसको देखना है तो आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, उसमें से हल्के हल्के स्प्राउट्स निकले हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये बहुत हेल्दी होते हैं और इसमें आपको छोटे छोटे ऑनियंस के पीसेस, टोमेटो, सॉल्ट, लेमन जूस मिक्स करना है और सबके साथ शेयर करके खाना है। तो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से हमारे स्कूल्स ओपन नहीं है, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करके खाएंगे। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो ये मूंग दाल है, जो मूंग सीड्स हैं, और जब हम उसको होल नाइट जब इसको हम सोक करके रखते हैं तो उसमें से स्प्राउट्स निकलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसके थ्रू हमें बहुत सारे विटामिन्स हमें मिलते हैं। तो आपको ये ज़रूर करना है, ये आपकी एक्टिविटी है, तो ये आप ज़रूर करोगे। तो मूंग सीड्स की जगह आप ब्लैक ग्राम्स भी यूज़ कर सकते हो, या जो भी आपका कुछ फेवरेट हो, जैसे वाइट ग्राम्स जो होते हैं छोले भी आप यूज़ कर सकते हो, या जो मटकी होती है मोठ जिसे बोलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। नाउ विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग? राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग देम। वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। तो आपको बताना है कि और कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिना कुक किए बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लेमन वाटर। तो लेमन वाटर बनाने के लिए हमें कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। मिक्स शुगर इन वाटर, ऐड लेमन जूस, स्ट्रेन इट एंड नाउ लेमन वाटर इज़ रेडी। तो इसी तरह से आपको 3 चीज़ें लिखनी है। तो आप क्या बना सकते हो, एक बार मैंने आप लोगों को बिस्किट से केक बनाना सिखाया था, जो हमारे फन विद केवीएस के चैनल पे अवेलेबल है, कुकिंग विदाउट फायर। तो उसमें हम कुकिंग के लिए फायर का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो वाली मेथड भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और जो फ्रूट चाट है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, या जो सैलड है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। तो जैसे फ्रूट सैलड बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से स्टेप्स उसके लिए यूज़ करोगे आप, ये आप यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखोगे फ्रूट सैलड के बारे में। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है फ्रूट सैलड, इसे एज ए डेजर्ट भी यूज़ किया जाता है। डेजर्ट मीन्स स्वीट डिश, और ये बहुत हेल्दी भी होती हैं। तो जैसे फर्स्ट कॉलम में हमने लेमन वाटर के बारे में लिखा है, उसी तरह के स्टेप्स आपको फ्रूट सैलड के बारे में, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये फ्रूट सैलड है। तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड थर्ड वन इज़ स्वीट लस्सी। तो लस्सी बनाने के लिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दही की और मलाई की। और फिर हम उसको किस में लेते हैं, एक बड़े से पॉट में लेते हैं, फिर उसमें हम शुगर मिक्स करते हैं और उसको अच्छे से स्टर करते हैं। और जब स्टर करते हैं और ऊपर से हम उसको ग्लास में डाल के ऊपर से हम मलाई डालते हैं, और जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं उससे हम उसे डेकोरेट करते हैं। तो इसी तरह से आपको सैलड और स्वीट लस्सी की प्रोसीजर यहाँ पे लिखनी है स्टेप्स वाइज। जैसे अब आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये है स्वीट लस्सी की पिक्चर।
देखो कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है ना उसे। Which are the other things you can prepare without cooking? तो ये आपको लिखने की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप विदाउट कुकिंग बना सकते हो। तो ये आप एग्जाम्पल्स आपने देख ही लिए हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। अगर कोई और फूड आइटम आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन कुक्ड फूड एंड uncooked or raw food. Cooked food is more digestible, uncooked food is less digestible. Cooked food is less nutritive and uncooked food is more nutritive. More germ free and safe. Cooked food is more germ free and safe. And food is more prone to germs and harmful chemicals. Some foods are healthier when cooked and certain foods like healthier when eaten raw. तो ये जो है डिफरेंसेस कुक फूड और अनकुक फूड में है। कुक फूड डाइजेस्टेबल होता है बट अनकुक फूड ये थोड़ा कम डाइजेस्टेबल होता है। तो ये डिफरेंसेस आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। नाउ व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? Answer is utensils are made up of a variety of materials including iron, brass, steel, copper, clay, borosilicate glass, aluminium and its alloys etc. तो ये चीज़ें यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। What do you mean by cooking? Answer is cooking means preparing food by combining, mixing and heating ingredients. Next question is name some utensils used in your house for cooking. Answer is some utensils used in my house for cooking are as follows. Which one are they? Skillet, frying pan, tawa, oak, handi, pressure cooker. These are the utensils are used in my house for cooking. Summary of the lesson is different types of utensils are used for cooking purposes like pressure cooker, frying pan, tawa, patila, kadhai, etc. Utensils used in cooking are made up of steel, iron, copper, glass, bronze, earthen pots. Different methods of cooking are roasting, boiling, baking, steaming, frying, etc. We do not cook all the things that we eat. Cooking has both beneficial and adverse effects on the nutritive value of food materials. An important beneficial effect of cooking is that it improves the taste of some foods as well as the digestibility of fibrous foods. Overcooking the food is one of the wasteful practices. If food materials are heated above 70 degrees Celsius for a long duration, then the proteins present in them become hard and cannot be absorbed easily by our body. Cooking of food materials with water results in comparatively greater losses of nutrients if this water is thrown away afterwards. For cooking food, different types of fuels are used. Examples are wood, cow dung, cakes, LPG, electricity, coal, gobar gas, etc. Cooking kills the germs in food and makes it germs free. Salads, chutney, sandwich, etc. are examples of uncooked food. Okay, thank you students. I hope you understand the lesson. Thanks for watching.